कंसोलिडेशन होएगा मार्केट में, लेकिन मैं जुलाई के 7 तारीख के बाद बहुत बुलिश हूं। मेरे को पक्का है कि जुलाई के मिडिल तक वी शुड बी हिटिंग न्यू हाइज ऑन द निफ्टी, और उससे भी ज्यादा जो आपने ये इस हफ्ते में मिड कैप्स में करेक्शन देखी है, जो एक हेल्दी करेक्शन है, वो अरेस्ट होने को आ रही है इसमें। और मैं बताऊं कि कुछ सेक्टर्स थे लाइक मेटल्स एंड कमोडिटीज जो बहुत ही तेजी के साथ बढ़े थे, और उनमें एक मच वांटेड करेक्शन आ रही है। मेटल्स आर प्रॉक्सी। कुछ शेयर्स मैं बोलूंगा जो आप लोगों को लिए यहाँ सिप करने चाहिए। पहले मुथूट और मनापुरम। अनक्वेश्चनेबली ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां 2% पर मंथ उनको बचना ही बचना है। 24% दे मेक मनी, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड नो एनपीएस बिकॉज द कोलैटरल इज सो स्ट्रॉन्ग। तो मनापुरम 160 और मुथूट 1475 में लीजिए, सिप कीजिए। एलआईसी हाउसिंग के नंबर थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, बट the questions are unanswered that how fast we are going to see a revival in mortgage and housing. That is the best place. तो ये 460 पे एक अच्छा करेक्शन आया। 525 का भाव आपको the two gold lenders मनपुरम और मुथूट आर माई टॉप पिक्स, और वो टॉप पिक्स जुलाई के महीने के लिए भी हैं, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर है। मुझे लगता है ये स्टॉक्स आपको यहाँ से 20 से 25% का अपसाइड बाय द एंड ऑफ द ईयर देंगे। दूसरा, अब हम जुलाई की अर्निंग्स की वेट करेंगे। मैक्रोस हमारे पॉजिटिव हैं, जीएसटी कलेक्शंस हैं। बैंकों का बैंक इस साल में रहेगा आरबीएल बैंक। 275 का टारगेट आपको दिवाली तक, जून में 240 का, 208 या 9, 8.5 से 9.5 में लीजिए। 5 का स्टॉप लॉस, 18.5 का टारगेट, ये अभी के लिए है, लेकिन जून में यह 240 जरूर जाएगा। दूसरा बाय जो एक अंडर परफॉर्मर ऑटो स्टॉक है, लेकिन इस भाव पे सबसे कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ईवी एंड ट्रैक्टर सेल्स। आई थिंक महिंद्रा इज अ परफेक्ट स्टॉक टू बाय। 776 to 78 में फ्यूचर मिल रहा है डिस्काउंट पे बिकॉज ऑफ अ डिविडेंड। इसमें 760 का स्टॉप लॉस रखिए, 820 का टारगेट। So Nigel, there was a little bit of issue on the corporate side when they said that the promoter was buying back the power assets at 1/4 of the price. And I think that came in for a lot of negativity from the institutions. So till they don't give clarity on that, JSPL will be an avoid. We think JSW, SAIL and Tata Steel, these three orders could be outperformers. Let me also tell you that Tata Steel is the lowest cost producer of steel, not in India, in the world. So, the link up which they have with iron ore and other supplies makes it very, very competitive. So I would say stay with the Tata Steel and SAIL. Don't get lured by others because there is a little bit of issues till you don't get clarification there. Okay, Sanjeev, one of your picks has been J&K Bank. That had a big run, and you still have very aggressive targets on that stock, I believe. Yes, Anuj, in October when it was 17 rupees and Modi ji announced the package for Kashmir, I had put my neck out that you cannot have a bank of the size of J&K, at trading at optimal levels. Now with the new realm with changing, Kashmir becoming a very, very lucrative place, I think J&K Bank is headed for spaces. As a disclosure, it has been one of our top picks in the last year. It's tripled in size, but I don't see any reason why it cannot go past to 70 rupees. On the back also that the pessimism in PSU banks was overdone. J&K Bank has a very small equity and they've raised capital. Plus, Anu, let me tell you, it had the highest NIM in all banking circles for many, many years. It is now only that the NIMs have started to reduce because of NPAs. As you know, in J&K and in the Muslim community, interests are not to be taken and so on. So the bank has been a very, very sweet spot over there. That and South Indian Bank have doubled. So I think mid-cap banks are just raring to go. And I'll name a few more which I think can be outperformers in the next 2 years. Okay, all right. Sanjeev, you briefly touched upon the domestic theme as well. And the global cyclical space is doing well. That's steel, metals, they're doing well. What about the domestic cyclical theme? That's cement, if I could call it that. We just had KCP's numbers that came out for you on the screen, and the numbers look very, very good on the top line, on the margins, as well as on the profitability. Cement, mid-cap or large cap, what would you look at? So clearly, Nigel, it has to be Ultratech. Let me tell you, in this whole lockdown, there were three things which were very eminent. The cable laying by Bharti and Jio, Domino's Pizzas, and the ready-mix trucks of Ultratech. There is construction work across the board which is going up. And who better than 110 million tons and Ultratech?
So Ultratech and Ambuja would be my two top picks. As a disclosure, we've had these, they've doubled from where they are, and we still think that they are going to be the real proxy plays for building India. Materials are in a very sweet spot. It's not just steel, it is cement. It is going to be mid-cap banks, which we think can outperform from it. मूड माहौल को देखते हुए लगता है सेठी साहब के दोनों स्टॉक आज होने चाहिए कैश मार्केट के लिए, और साक्षात ही हैं सेठी साहब, तो आज फोन पर नहीं है। सर स्वागत है, बताइए सर, शुरुआत कीजिए अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स की। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज की शॉर्ट टर्म पिक्स देने के पहले अनिल जी, कल की जो शॉर्ट टर्म पिक थी EID पैरी, जो कि मैंने 430 के लेवल पर कल रिकमेंड करा था, 450 के मेरे टारगेट्स थे, वो आज हासिल हो गए। और बाकी एक इंडियन होटल्स भी कल परसों ही रिकमेंड करा हुआ, वो भी अच्छा कर रहा है और 151-52 के लेवल पे आ गया है, 140 के आसपास रिकमेंड किया हुआ था। बाकी अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है, वो जो पहला स्टॉक है वो अनिल जी एक दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, जो कि SW सोलार के नाम से सिंबल है, NSE में ट्रेड होता है। स्टॉक अभी 254-255 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी सापुरजी पेलनजी ग्रुप की कंपनी है, जो कि टाटा सन्स में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। एक दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग सोलार EPC कंपनी है, करीबन 34 देशों में इनके काम होते हैं, एक ग्लोबल प्लेयर है और खास करके बाहर के देशों में, यूएस में भी बड़ा ऑपरेशन है। यूएस में एक अच्छी इनकी सब्सिडरी है, हाल ही में उनको 890 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। और आज जब हम बात कर रहे हैं, कल हमने यूएस में देखा जो बाइडेन साहब ने $579 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज को मंजूरी दी है, जो कि अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो एक स्ट्रैगरिंग 43 लाख करोड़ रुपया होता है। और उनका पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां की रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ा फोकस है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस में पावर सेक्टर को डीकार्बोनाइज करेंगे 2035 तक। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है उनको होगा। कंपनी ने बहुत बड़ी कैपेसिटी 10.8 गीगावाट की ऑलरेडी कंप्लीट की है, या करंट प्रोसेस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो है। बाकी इन्होंने अबू धाबी में भी जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट है, उसको भी इन्होंने ही बनाया है, 1177 मेगावाट का। दमदार फंडामेंटल्स है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है 20 के, और डिविडेंड 6 रुपए का था लास्ट ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54%। और कंपनी के कर्ज को लेकर थोड़ी चिंताएं थी, उसके कारण से स्टॉक काफी पिटा था। बट एक तो चूंकि सापुरजी पेलनजी ग्रुप है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे कुछ दिक्कत होनी चाहिए। और डेट को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी हद तक इन्होंने कम किया है। तो ऑल इन ऑल इस स्टॉक पे बुलिश हूं। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 275 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, 245 का स्टॉप लॉस। और इस कंपनी के भी 29 तारीख यानी कि ट्यूसडे को नतीजे हैं, जो कि मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं दमदार नतीजे होने चाहिए, तो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। स्टर्लिंग एंड विल्सन और सेठी साहब, इसके लिए दिल से धन्यवाद स्वीकार करें, क्योंकि SIP स्टॉक्स में जितने शेयर हमने दिए, शायद एक यही ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे मतलब खराब प्रदर्शन किया, अभी तक चला नहीं है। 315-20 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था, वहां से नीचे है और उसके बाद से वो लेवल आया नहीं। तो टर्न अराउंड होने की कोशिश है कंपनी की, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास है डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि बीच में मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी था ट्विटर पर कि ये शेयर हमारे पास रह गया। बात सही है, कभी कभी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो थोड़ा वक्त लेते हैं, स्टोरी बनने में टाइम लगता है, बैलेंस शीट या फिर ऑर्डर्स आने में वक्त लगता है। तो चिंता न करें, अगर आपके पास पड़ा है रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा। और फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग के लिए आज से खरीद रहे हैं, तो जैसा सेठी साहब ने कहा 245 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस और 275 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए वो भी कैश मार्केट का ही होगा? हाँ अनिल जी, बिल्कुल कैश मार्केट का स्टॉक है, लेकिन अनिल जी एक तकलीफ हो गई, जो इंतजार किया उसके कारण से व्यूअर्स को नुकसान हो गया। बिकॉज 145 के लेवल पे ये था अभी थोड़ी देर पहले जब मेरे रडार पे आया और मुझे रिकमेंड करना था। हालांकि अभी भी मैं उसी स्टॉक को रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, जो कि अभी 148-149 के लेवल पे आ गया है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, ये एक्सप्लोसिव बनाती है प्रोपेलेंट्स के लिए, जो कि काम आते हैं सैटेलाइट्स में, रॉकेट्स, मिसाइल्स को लॉन्च करने में। और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ये आकाश मिसाइल्स, अस्त्र मिसाइल्स वगैरह हमने दागी है, तो उन सब में इसका काफी योगदान रहा है। एक महत्वपूर्ण कंपनी है। और बाकी इसके जो प्रमोटर है डॉक्टर एन गुप्ता, वो गोल्ड मेडलिस्ट है माइनिंग में। एक इनोवेटिव कंपनी है, इन्होंने कई डिटोनेटर्स, तो जो कि दुनिया में सबसे पहली कंपनी है, ऐसे भी कई डिटोनेटर्स इन्होंने इजाद किए हैं। बाकी दमदार कंपनी, और सरकार का जिस हिसाब से फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है। और इसको भी आज पिक करने के पीछे कारण है कि इसमें पिछले साल कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, बट मुझे लगता है आप इसमें टर्न अराउंड बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इसके नतीजे शायद सोमवार या मंगलवार को आने वाले हैं।
तो उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ से अच्छी तेजी हो सकती है। 148-49 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरा शॉर्ट टर्म का 165 का टारगेट है और 140 का स्टॉप लॉस रखना है। सेठी साहब, आपने भी कई बार रिकमेंड किया है, जरा नेल्को की चार्ट देखिए, बताइए सर। सॉरी, अपनी राय दीजिए रिजल्ट्स के लिहाज से। सोमवार को आने वाले हैं रिजल्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, इस स्टॉक को भी मैंने नेशनल लेवल पर रिकमेंड किया हुआ है। एक दमदार कंपनी है और सबसे अच्छी बात है एक इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है जो कि बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम तीनों बनाता है, तो उस कारण से इसके मार्जिन भी विद इन द सेक्टर काफी अच्छे हैं। नतीजे इस बार दमदार रहेंगे और ये तो मार्च क्वार्टर के नतीजे की बात हो रही है, बट ये जो जून का क्वार्टर होगा वो और भी उससे दमदार होगा, बिकॉज अप्रैल मई में हमने और तूफानी तेजी सभी एल्यूमिनियम और एल्यूमिना सब में देखी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ उनको बने रहना है और फ्रेश खरीदारी भी करने की राय है। इवन मुझे लगता है परसों के रिजल्ट्स को भी प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इन ऑल मेटल एज ए स्पेस बहुत अच्छा लगा जुलाई सीरीज के लिए। आज से चाल शुरू हुई है करेक्शन के बाद। पिछले जून की एक्सपायरी में 15-20% का सभी स्टॉक में करेक्शन हुआ है और आज पहला दिन है जब ये स्टॉक्स चलने लगे, तो मुझे लगता है अभी दम कम है, तो मेटल सेक्टर पे ही पूरा बुलिश हूं मैं।